It is our general observation in daily life. Every one of you observe daily in your life that a body dropped is free to move, goes only in downward direction. Suppose there is a tree and here is a fruit, apple. If apple is detached from its branch, goes only in downward direction, though the space around the apple was alike surrounding it. In all possible directions, it could go. The space around the apple was alike in all possible directions, but the apple came down vertically. Apple came down vertically on the ground. Everything comes down vertically if dropped. Now see, observe our observation in daily life. क्या है? A body dropped from certain height moves in downward direction only. That is towards earth. Although space around dropped body is alike in every direction. Why it is so? One of our, you may say, elder, yeah, scientist, Newton, thought that Earth must be attracting every object. Earth attracts every body towards its center. Our Earth is a spherical ball type. It is nearly spherical. If you drop an object here in the sky of Earth, it will go towards Earth's center. And if you drop here, it will not go like this. It will go towards center of the Earth. If you drop a body here, it will move towards the center of the Earth. So, to every object, Earth attracts towards its center. This attraction is called gravitation. This property of attraction by Earth is called gravitation. Raindrops coming down towards Earth, waterfalls go down to lower levels, a freely falling object body gets accelerated. हमने देखा कि यदि किसी बॉडी को हम ऐसे छोड़ें तो इनिशियल स्पीड इज क्वाइट लो, बट
as time passes, its velocity increases. So there is an acceleration acting on the body. That acceleration acting on every body, on every object, is called gravitational acceleration, with certain acceleration 9.8 meter per second square. Now another observation: if a stone piece and a shuttlecock are dropped from certain height, both will not strike at the ground at the same moment. A stone piece will reach the ground level first, and then after shuttlecock. If a stone piece and a shuttlecock are a very light body, are dropped from the top of a high building at the same moment, will they strike ground simultaneously? Answer is no. They will not strike simultaneously the ground point. But the same experiment, if repeated in vacuum means there is no air friction. If we keep a long tube light, evacuated tube light, suppose this is a long tube light, and if we evacuate it, means there is no air inside. If we manage to file down an iron piece and a kite or a shuttlecock, both will reach the ground at the same time. You may take a paper piece also. If in air from the top of a high building, if you drop an iron piece and a paper piece, free to fall, you will observe the iron piece hits the ground first and paper piece goes very slowly, randomly moving, and it reaches ground level after some time more. But the same experiment, if is repeated in a vacuum, you will observe that an iron piece and paper piece reaches simultaneously at the ground. It means earth attracts every object, everything with the same acceleration. By experiments, we conclude something. This was our first observation. Everything falls down. This was our first observation. Second observation is about the time of different objects. But if we use vacuum, both will touch the ground point
in the same time. So we conclude Earth attracts every object with the same acceleration, and that acceleration experimentally we have calculated 9.8 meter per second square. In higher classes you can measure it. Gravitational acceleration of Earth. This happening is not confined only to our planet Earth, but this happening also happens on other planets also, on satellites also. If you drop a body on moon, moon attracts the body with an acceleration 1.6 meter per second square only. So this is value of G of moon. Value of G, gravitational acceleration of moon. Gravitational acceleration of moon is this. But gravitational acceleration of Earth is 9.8 meter per second square. On Jupiter, Jupiter is a big planet. If a body is dropped in the atmosphere of Jupiter, it attracts the body with certain acceleration 20 meter per second square. So, if a body from Earth is transferred to moon, its weight will be less than the weight of at Earth. Suppose we have a body of 40 kg. Suppose we have a mass of 40 kg. Mass 40 kg. Its weight on Earth will be written as mg, that is 40 kg multiplied by 9.8 meter per second square. So its body weight will be equal to 39.392 Newton. But the weight of same mass on moon, weight on moon will be equal to 40 multiplied by 1.6, that is 64 Newton only. But the same mass, if transferred on Jupiter, its weight will be equal to 40 multiplied by 20, that is 800 Newton. So a mass if lifted, क्या कर रहा तू? If a mass is lifted on Jupiter, it will need more force to uplift.
but the same mass is, if lifted on moon, it will need a small force. This gravitation is on every planet, on every celestial body. Now, law of gravitation. देखो, पढ़ने से, ऊंचे लोगों की बातें सुनने से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। इस घटना का वर्णन यहां कर रहा हूं। एक कहानी ऐसे कहीं पढ़ने को मुझे मिली। न्यूटन साहब ऐसे अपने सेब के बगीचे में न्यूटन साहब बैठे थे। एक सेब, पका सेब, डाली से टूटकर सीधे इनके नाक पर गिरा। झन्ना गए होंगे और सेब इधर गया, लेकिन न्यूटन को गुस्सा नहीं आया। न्यूटन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि न्यूटन विचार करने लगे। न्यूटन को गुस्सा नहीं आया। साधारण आदमी होता तो उसको गुस्सा आ जाता कि तुमको मेरे नकिया पर गिरना था, आओ आज तुमको पीस के चटनी बना के चाटी जाऊंगा। उसको गुस्सा आ जाता। लेकिन न्यूटन को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि जब ये डाली से अलग हुआ तो इसको मूव करने के लिए इसके चारों ओर जगह तो समान थी, एक जैसा, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। ये नीचवा ही क्यों आया? मेरी नकिया पर क्यों हिट किया? नीचवा ही क्यों आया? तो उनको ध्यान आया कि यही नीचे नहीं आ रहा, बल्कि हम तो सारी बॉडी ही नीचे गिर रही। तब उनको ध्यान आया कि जब हम ड्रॉप कर देंगे किसी बॉडी को तो हर बॉडी ही नीचे आती है। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। इस साधारण क्वेश्चन को यदि मैं एक कॉमन मैन से पूछूं तो वह जवाब नहीं दे पाएगा, या हो सकता है मेरे प्रश्न को ही ना समझे। जैसे मैंने कहा, जो साइंस पढ़ा हुआ आदमी नहीं है उससे मैंने कहा कि ये पानी नीचे क्यों गिर रहा है? ये पानी नीचे क्यों गिर रहा है गिलास का? तो उसने कहा तो क्या समझते हो कि ऊपर गिरेगा? अरे ऐसे छोड़ रहे हो तो नीचे में नहीं गिरेगा। हमने कहा ये तो मैं भी देख रहा हूं कि नीचे में हर बॉडी गिरती है और ये भी नीचे गिर रहा है, लेकिन मेरा तो प्रश्न है कि नीचे ही क्यों गिर रहा है? कहे यार तू भी अजीब आदमी है, अरे छोड़ोगे तो नीचे में नहीं गिरेगा। क्योंकि मेरा प्रश्न भी नहीं समझ रहा हो। नहीं समझे? क्योंकि उसका दिमाग पक चुका है, वो मेरी बात को नहीं समझ सकता। जैसे एक बूढ़े आदमी से पूछे कि दादा इस चीज को मैंने छोड़ दी तो वह नीचे ही क्यों गिर रहा है? कहे तू भी बड़ी अजीब बात करते हो,
नीचे में नहीं गिरेगा, कहाँ जाएगा, नीचे में नहीं गिरेगा, क्योंकि अब वो मेरा क्वेश्चन भी नहीं समझ सकता। लेकिन तुम नए एज के बच्चे हो, मेरी बात को समझ रहे हो। क्वेश्चन तो ये है कि जब इस बॉडी के चारों तरफ एक जैसी जगह है तो नीचे ही क्यों जा रही है, क्वेश्चन ये है। ये तो मैं भी देख रहा हूं कि हर वस्तु नीचे जाती है, क्वेश्चन तो मेरा ये है नीचे ही क्यों जा रही है। तुमने मम्मी से कहा, मम्मी ये पानी गिरा रही तो नीचे क्यों जा रहा है, कि तुम भी बड़ी अजीब बनती है, आज तक नहीं समझी, नीचे में न जाएगी। मम्मी से पूछ के देख लीजिए, क्योंकि साइंस का उधर अभाव है, उधर साइंस नहीं है। ठीक, मम्मी सटीक जवाब नहीं दे सकती तो मम्मी को तंग नहीं करते। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए सामान्य व्यक्ति से कि हर वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है, तो उसको आश्चर्य होगा आपके दिमाग पर। वो कहेगा कि बड़ा अजीब आदमी है, अरे जब छोड़ोगे तो नीचे में नहीं गिरेगा, कहाँ आसमान में चला जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा, नहीं समझे। और यदि तुम क्वेश्चन भी समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। बात समझ गए? हर वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है, बात यहां है। तो न्यूटन ने कंक्लूड किया, पहली बार न्यूटन ने यह फील किया। किसने फील किया? न्यूटन ने, मेरे कक्का ने नहीं। किसने फील किया? न्यूटन ने। क्या उस समय संसार में 2 या 4 न्यूटन टाइप के आदमी थे, क्या और कुछ लोग थे? उस समय भी संसार भरा हुआ था आदमियों से। लेकिन ऊंचे विचार किसी किसी को आ जाते हैं, और जो ऊंचे विचार किसी मस्तिष्क में आ जाते हैं और उस विचार के द्वारा व्यक्ति समाज का कल्याण करता है, समाज को दिशा देता है, वो बड़ा ही फ्रूटफुल होता है, वो बहुत ही निर्णायक मस्तिष्क होता है। वो विचार अच्छे लोगों के मस्तिष्क में आ जाता है तो सोचने पर आता है, गुस्सा करने पर नहीं आता। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि तुमको मेरी नकिया मिली थी गिरने को, ऐसा नहीं सोचा, बल्कि सोचना शुरू किया कि आखिर हर वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है। तो न्यूटन का कंक्लूजन था कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। अभी न्यूटन का दिमाग भी अभी विकसित नहीं था, अभी पूरा दिमाग विकसित नहीं था न्यूटन का, और न्यूटन ये सोच नहीं पा रहे थे कि अर्थ क्यों अट्रैक्ट करती है। अभी सोच अधूरी थी न्यूटन की। लेकिन जब न्यूटन ने केपलर का भाषण सुना, जो केपलर की बातें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब केपलर का भाषण सुना तो केपलर, उस समय न्यूटन की एज 32 ईयर्स थी, केवल 32 साल उम्र थी न्यूटन की। और एक ग्रेट मैथमेटिशियन उस समय हुआ करते थे, लीजेंडर। तो केपलर का साइंटिफिक भाषण होना था और निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड लीजेंडर साहब को मिला था, क्योंकि वह लेक्चर किसी पॉलिटिशियन का लेक्चर नहीं होता कि हर आदमी सुन लेगा। वह लेक्चर, साइंटिफिक लेक्चर, ऊंचे साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस के लिए होता है। तो वह इनविटेशन कार्ड सबको नहीं होता, कुछ स्पेशल लोग होते हैं वर्ल्ड के, उस डायरेक्शन में वर्क करने वाले, उनको वो पत्र होता है, इनविटेशन कार्ड होता है। तो लीजेंडर की एज उस समय राउंड अबाउट 55 थी, और वो न्यूटन को जानते थे कि यह लड़का बहुत तेज दिमाग का है। लीजेंडर जानते थे न्यूटन को कि यह लड़का बहुत तेज दिमाग का है। तो लीजेंडर ने कहा कि न्यूटन,
केपलर का भाषण होना है, चलो सुनो। तो उस भाषण को, केपलर के भाषण को सुना। केपलर के भाषण को सुनने गए। कौन? न्यूटन। तो केपलर के उस भाषण से न्यूटन को यह मिला कि केवल अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि सन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है। एवरी सेलेस्टियल बॉडी अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। ये बात मिली। पहले न्यूटन को से ये समझते थे कि अर्थ ही अट्रैक्ट करती है, लेकिन केपलर के भाषण के बाद न्यूटन को समझ में आ गया कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की जितनी बॉडीज हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। बात समझे? और उसके बाद तब न्यूटन ने यह लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? वी विल सी हियर। Secondly, universal law of gravitation. Every body of this universe, बॉडी न कह के ऑब्जेक्ट कहें, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स attracts each other. If two masses m1 and m2 are separated by a distance r, the force of gravitation between them, Fg, is directly proportional to their product of masses, and Fg is also inversely proportional to their let me write
is directly proportional to product of their masses. And inversely proportional to the square of distance between their centers. We formulate it above statement as F directly proportional to M1 and M2, F inversely proportional to 1 by R square, combining equation 1 and 2. We write as M1 M2 by R square. Proportional sign indicates that this thing was based on physical observation. You may say this is language of physics. Physics observations. To give it a mathematical form, we would have to multiply with a constant. To convert this physical observation in mathematical form, we multiply with a new alphabet G, that is called gravitational constant, and this expression is called mathematical physics. This is called mathematical physics. You know, mathematics is language of physics. फिजिक्स में हमें कोई बात कहनी है तो हम उस बात को इक्वेशन के रूप में कहेंगे,
और इक्वेशन का मतलब हो जाता है मैथमेटिक्स। कोई इक्वेशन बन गया तो मैथमेटिक्स हो गई। तो फिजिक्स की मैथमेटिक्स ये है, किसी बात को हमें कहना है तो हम उस बात को इक्वेशन के रूप में कहेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो हमारा यही था, तो इसको मैथमेटिक्स हम बनाएंगे। अब तब ये एक्सप्रेशन फिजिकल मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स से यह नहीं आया है, ये फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन से पैदा हुई मैथमेटिक्स है। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है फिजिकल ऑब्जर्वेशन से पैदा हुआ है, इसलिए इसको हम फिजिकल मैथमेटिक्स कहते हैं। G is known as, G is universal gravitational constant। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड G हैज वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। Why G is called universal gravitational constant? Because the value of G remains unaltered in every corner of our great universe। चंद्रमा पर जाओगे G का मान वही होगा, इस G का मान उस G का मान नहीं। स्मॉल G चेंज कर जाएगा, स्मॉल G और कैपिटल G में बहुत अंतर है, ये कहीं भी जाओगे चेंज नहीं होगा। जितना अर्थ पर होगा उतना ही मून पर होगा, उतना ही जुपिटर पर होगा, उतना ही यूनिवर्स की किसी भी पोर्शन में होगा। वो G की वैल्यू ऑलवेज यही होती है, पूरे यूनिवर्स में यह रहता है। यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है तो वो भी यूनिवर्स में है, लेकिन यहां से आप 15 किलोमीटर दूर चले गए तो मुगलसराय क्षेत्र में पहुंच गए, चंदौली में नहीं है आप। लेकिन यूनिवर्स से में तो करोड़ों किलोमीटर दूर भी यहां से चले जाएंगे तो यूनिवर्स में ही रहेंगे आप, चाहे कहीं भी जाएं आप। तो यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप जाएंगे G की वैल्यू यही रहेगी, वो चेंज नहीं करती। इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू ऑलवेज यही रहती है। ठीक, इसकी वैल्यू वही रहती है। मेरे सर के सर के सर के सर जो पढ़े थे वो भी यही पढ़े थे, और आपके बाद के चाहे सब के सब वही पढ़ेंगे। सैकड़ों साल से पढ़ रहे हैं और हजारों साल तक यही पढ़ते रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। आपके गांव के प्रधान जी बदल जाएंगे, ये जी नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये जी है, बड़का जी है, कैपिटल जी है, ये चेंज नहीं करेगा। डीएम साहब बदल जाएंगे, नए डीएम साहब आ जाएंगे, एसपी साहब बदल जाएंगे, नए एसपी साहब आ जाएंगे, होमगार्ड जी बदल जाएंगे, नए होमगार्ड जी आ जाएंगे, बहुत से लेटे बोल जाएंगे, बहुत से नए लोग आ जाएंगे, लेकिन यह जी नहीं बदलेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। आप 400 साल से इसको पढ़ रहे हैं, और जब तक ये अर्थ रहेगी और हमारी सभ्यता
बनी रहेगी। जब तक स्कूल होंगे, जब तक लोग आते जाएंगे, सबको ये पढ़ना पड़ेगा जी। जैसे जब भी तुम स्कूल में आओगे, तुम्हें क पढ़ना पड़ेगा। संसार में हर एक आने वाले को क पढ़ना पड़ेगा, और ABCD भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ने नहीं जाना चाहते, पढ़ना पड़ेगा। जाओगे कहाँ बच्चे? पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अंगूठा लगाना पड़ेगा, साइन भी करने नहीं आएगा। मोबाइल में मैसेज भी नहीं पढ़ने आएगा। अब मैसेज डालना चाहते हो तो कैसे डालोगे? मैसेज भेजने भी नहीं आएगा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। यदि आप साइंटिफिक वर्ल्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आपको यह पढ़ना ही पड़ेगा। और जब भी कोई पढ़ने आएगा तो यही पढ़ाया जाएगा। सर हो सकता है कुछ दिन के बाद भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि चेंज हो जाए। नहीं चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। भगवान की कृपा दूसरे ढंग की हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस चीज के भगवान ने वो बना दिया है कि होता ना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? नाम बोलिए इसका। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। धीरे से नहीं बोलते, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और जैसे ही उसको ठीक से बोलते हैं वैसे ही ठीक से उसको अपने माइंड में कीप करते हैं। कीप इन योर माइंड। अगली बात, हमने क्या देखा? एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। नाउ one thing more. मैं अभी आपसे छोटे छोटे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपने इस यूनिवर्स के एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, हैव यू सीन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स? Have you seen any object of this universe? इस यूनिवर्स का कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा है अभी तक? आपने देखा? Any object have you seen of this universe? प्लैनेट। हाँ? क्या देखा? प्लैनेट। क्या देखा? प्लैनेट्स बोल रहा है। प्लैनेट? प्लैनेट देख लिया। इस यूनिवर्स का कौन सा प्लैनेट देखा तूने? अर्थ देखी। अरे जरा मुझे भी दिखा दे। आपने इस यूनिवर्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा? हाँ बोलिए। Everything which have mass is an object. यदि हम वन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट तो यूनिवर्स के ही हैं। ये दो मासेज ले लिया तो दो हो गया। क्या ये ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स है? यस यस। और ये यस ऑल्सो दिस एंड दैट। कोई भी यदि हमने दो पोटैटो ही ले लिया तो ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स हो गया। यदि हमने दो एप्पल ही ले लिया तो दो ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स हो गया। यदि हम मून एंड अर्थ पर बात कर रहे हैं तो मून और अर्थ तो दो ऑब्जेक्ट हो गया।
यहां लिखा है एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट। आपने इस यूनिवर्स का कोई ऑब्जेक्ट देखा है क्या? हाँ सर, 2 ठो मच्छर देखे थे। यस यस यस, राइट। यदि आपने 2 मच्छर देखे थे तो वो भी ऑब्जेक्ट ही थे इस यूनिवर्स के। यदि मूंगफली के 2 दाने आप खा गए तो आप इस यूनिवर्स के 2 मास देखे थे आप, ठीक है। मास, गो थ्रू द लैंग्वेज, गो थ्रू द लैंग्वेज। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। इफ वी हैव 2 alike spheres kept on a table, suppose both bear 1 kg of mass, both are of 1 kg mass, यदि हम लोहे के 2 गोले किसी टेबल पर एक दूसरे के पास माउंट कर दें, 1 kg ईच, तो ये दोनों मासेज भी मासेज ऑफ यूनिवर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। और अभी मैंने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग गया, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग गया तो गारंटी है एक्सेलरेशन होगा। बताया था, किसी भी बॉडी पर फोर्स लग गया तो गारंटी है उसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो उनकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो क्या इनकी वेलोसिटी बढ़ रही है? क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है? और क्या एक दूसरे से जाके टक्कर कर रहे हैं? यदि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इफ बोथ आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, बोथ आर exerting force on each other, then why they are not moving? Why not they are moving? Accelerated. The question is, if we keep 2 alike masses of 1 kg each on a certain table, you can observe both are not moving towards each other, though by the law of gravitation we feel that there would be certainly some force of attraction on each other. तो यदि एक दूसरे पर ये बल लगा रहे हैं तो चल क्यों नहीं रहे? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया कि किसी बॉडी पर यदि फोर्स लग गया तो एक्सीलरेशन होना है। तो यहां एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए सपोज कर लो यह फोर्स मे बी वेरी स्मॉल,
0.00001 Newton, earth 1 Newton. Suppose this force is very small. तो एक्सीलरेशन भी वेरी स्मॉल होना चाहिए, और स्मॉल एक्सीलरेशन भी है तो धीरे 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 तो इनको बहुत टाइम के बाद तो इन्हें एक दूसरे के पास आके टच कर जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना ही यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर जाता है। ज्यों ही यह टेंड करता है, चलने की कोशिश करता है, उतना ही यह फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, टेबल का जो फ्रिक्शन है इसको रोक देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों पर सेम फ्रिक्शनल फोर्स, जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपॉन करने लगता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पास नहीं आते। ठीक, लेकिन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा, लेकिन यदि मासेस बहुत लार्ज हों, लार्ज मासेस, सपोज you see, mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and mass of moon बुक देना जरा। मास ऑफ मून इस समय 10 to the power 22 kg, राउंड अबाउट 8 into 10 to the power 22 kg में भी। बैटरी के डाउन, अच्छा रहने दी, स्विच ऑफ हो गया, अपने आप बैटरी डाउन। बैटरी डाउन हो गई। चलिए, हमारी बैटरी तभी काम कर रही है, लीजिए, क्योंकि मैं अभी चाय पी के आया हूँ, इसलिए हमारी बैटरी चल रही है अभी। अच्छा देखिए आप, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज this meter. बंद करेंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड